السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ سندھ حکومت کی جانب سے مورو کے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے آر او پلانٹس ناکارہ ہو گئے۔ سندھ کے شہر مورو کے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ بنیادی سہولیات فراہم کرنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم نہ کر سکی۔ صاف پانی مہیا کرنے کی کوشش مورو کے شہریوں کی زندگی سہل نہ کر سکی۔ کڑوے پانی کو پینے کے لائق بنانے کے لیے آر او پلانٹ کا میگا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مورو شہر میں کروڑوں کی لاگت سے بنائے گئے آر او پلانٹس مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے سبب غیر فعال ہو گئے۔ مشینری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ زنگ آلود ہو چکی ہے، جبکہ شہری اور دیہی علاقوں میں نصب پلانٹس بدستور بند پڑے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں مورو کے باسی کڑوا اور مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا بھی ہونے لگے ہیں۔ پانی کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، سارے ناکارہ لگے پڑے ہیں، کوئی بھی کام صحیح نہیں ہے۔ عوام جو ہے پانی کے لیے بہت پریشان ہے۔ ایک جگہ جاتی ہے تو وہ بھی پلانٹ خراب، دوسری جگہ آدمی چکر لگا لگا کے پریشان ہو گئے۔ مہربانی کر کے حکومت کو عرض کیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کیے جائیں اور انہیں بحال کیا جائے۔ اور شہر میں تقریباً 4 سے 5 آر او پلانٹ لگے ہوئے ہیں جو سارے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ ہماری زمین کا جو نیچے والا پانی ہے وہ بالکل کھارا ہو چکا ہے، وہ پینے کے لائق نہیں رہا اور مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ مہربانی کر کے اس کو دیکھیں اور اس کو احتیاط کریں، اس کو چالو کریں، ہمارا کوئی کام چلے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مورو شہر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے آر او پلانٹس کو فعال بنایا جائے اور عوام کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ماناوالا میں پینے کے صاف پانی کا بحران سنگین ہو گیا۔ 15 سال گزر جانے کے باوجود بھی صاف پانی کا منصوبہ فعال نہ ہو سکا۔ شیر محمد زرگر کی رپورٹ۔ ماناوالا میں لاکھوں افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی طرف سے 9 کروڑ روپے سے زائد رقم سے تیار ہونے والا واٹر سپلائی کا منصوبہ 15 سال گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکا۔ شہری آلودہ پانی پینے سے مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ ماناوالا دے وچ آج تو 15 سال پہلے ایک منصوبہ تیار ہویا سی صاف پانی دا، کہ وہ صاف پانی والا منصوبہ چل نہیں سکیا ہے کہ شہری عوام جہی ہے وہ گندا پانی پین تے مجبور ہے۔ ساڈی یہی اپیل ہے کہ یہ دوبارہ تیار ہویا جائے تو عوام نوں صاف ستھرا پانی فراہم دیتا جائے۔ دوسری طرف محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے پانی کا منصوبہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ پانی کی فراہمی کے لیے 10 ٹیوبویل بھی ناکارہ ہو چکے ہیں، جس سے ماناوالا کے شہری گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ ماناوالا کے شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ کروڑوں روپے سے تیار ہونے والا واٹر سپلائی کا منصوبے کو فی الفور فعال کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شیر محمد زرگر، نمائندہ سچ نیوز، ماناوالا۔ پاک پتن میں جگہ جگہ موت بانٹنے والے منی پیٹرول پمپس اور غیر قانونی تیل ایجنسیوں کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر نے گھیرا تنگ کر دیا۔ نذیر کھرل کی رپورٹ۔ پاک پتن شریف میں اسسٹنٹ کمشنر میاں اظہر طارق وٹو نے غیر قانونی طور پر منی پیٹرول پمپ، گنجان آباد ترین علاقوں میں تیل کی ایجنسیوں اور پیمانے سے کم بیچنے والے پیٹرول پمپ کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ لاکھوں روپے جرمانے، کئی پیٹرول پمپ اور ایجنسیاں سیل اور ان کے مالکان کے خلاف FIR بھی درج کرا دی۔ پیٹرول پمپس کا معیار اور اس کی کوالٹی کو باقاعدگی سے چیک کیا جا رہا ہے، جس میں ہم نے پرائس میجسٹریٹس کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جس میں ہمارے DOIP بھی ہوتے ہیں اور اس کے سیمپلز بھی باقاعدہ بھیجے جاتے ہیں، اور جن کے سیمپلز ٹھیک نہیں ہوتے ان کے خلاف سخت کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں اظہر طارق وٹو کا مزید کہنا ہے کہ کم پیمانے سے بیچنے والے پیٹرول پمپ مالکان کو میڈیا کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ باز آ جائے ورنہ عبرت کا نشان بنا دیں گے، اور عوام سے بھی گزارش ہے جہاں بھی غیر قانونی تیل کی ایجنسی ہو ہمیں اطلاع دیں، ان کے خلاف فوری کارروائی کریں گے۔ کیمرہ مین راشد ہنجرا کے ساتھ نذیر احمد کھرل، بیورو چیف سچ ٹی وی، پاک پتن شریف۔ کوٹ مٹھن کا اکلوتا اسٹیڈیم زبوں حالی کا شکار ہو گیا۔ اسٹیڈیم کی 4 دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ راؤ منصور کی رپورٹ۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے بالآخر وہ چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوٹ مٹھن میں بنایا جانے والا شہر فرید کا اکلوتا آفتاب اسٹیڈیم، جو کہ انتظامیہ کی عدم دلچسپی، مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ اسٹیڈیم میں نہ ہی پانی کی سہولت، نہ ہی گراسی پلاٹ، نہ ہی شائقین کے لیے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ ہے۔ چاروں اطراف گندگی کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں۔ 4 دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کوٹ مٹھن کے آفتاب اسٹیڈیم کی یہ جو حالت ہے یہ کسی مسیحا کی منتظر ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور سیاستدانوں کو چاہیے
کہ जो खेलों के मैदान हैं उनको आबाद करने के लिए इसकी हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए। हम नौजवानों को कोट मिठन में कोई खेल कूद की जगह नहीं मिलती। एक ही हमारा कोट मिठन का इकलौता आफ्ताब स्टेडियम है। इस यहाँ जब खेलने कूदने के लिए जब आते हैं, ना यहाँ पानी है, ना बैठने की जगह है, ना ग्रासी है, ना यहाँ पे हमारे लिए कोई नौजवानों के लिए फैसिलिटीज़ हैं। हम यहाँ के इंतज़ामिया और यहाँ के हम जो हमारे सियासी नुमाइंदगान हैं उनसे मुतालबा करते हैं खुदारा हमारे लिए खेल कूद के मैदानों को आबाद किया जाए ताकि हम नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खेल कूद की सरगर्मियाँ जारी रख सकें। जबकि खेल कूद की सरगर्मियों से महरूम नौजवानों का कहना है कि हम स्टेडियम में खेलने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ की हालत बहुत ही खराब है। सियासी नुमाइंदगान और इंतजामिया स्टेडियम की हालत को फिलफौर बेहतर करे। स्टेडियम की हालत देखकर नौजवान मायूसी का शिकार नजर आते हैं। जिली इंतजामिया और सियासतदानों को चाहिए कि स्टेडियम की हालत को फिलफौर बेहतर किया जाए ताकि नौजवान अपनी खेलों की सरगर्मियां जारी रख सकें। कैमरामैन रियाज मसोई के साथ रौ मंजूर, सच न्यूज़, कोट मिठान। हुकूमत बदली, हुक्मरान बदले, नहीं बदली तो 35 लाख से ज्यादा आबादी वाले जिला बहावल नगर की किस्मत। शहर के बेशतर इलाके आज भी सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। राजा कौकब इफ्तिखार की रिपोर्ट। बुनियादी सहूलियात की फराहमी हर शहरी का हक है, मगर बहावल नगर की गरीब आवाम को वादों के सिवा कुछ न मिला। इसे शहर वफा की बदकिस्मती कहें या हुक्मरानों की बेहिसी। बहावल नगर शहर की 70% आबादी आज के जदीद दौर में भी सुई गैस की सहूलत न होने के सबब लकड़ियां जलाने पर मजबूर है। साबका अदवार में अवामी नुमाइंदों की जानब से सुई गैस फराम करने के वादे आज तक वफा न हो सके। शहर के गुंजान आबाद इलाकों फैसल कॉलोनी, कुरैश कॉलोनी, महल्ला इस्लाम नगर और मॉडल टाउन समेत शहर के बेशतर इलाके सुई गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। खवातीन का कहना था कि सख्त सर्दी के मौसम में इन्हें उमूर खानदारी अंजाम देने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने सुबह सुबह बच्चों को भी तैयार करके स्कूल भेजना होता है, आग जला के हमें आग जलाने में बहुत मुश्किल होती है। सुबह सुबह नाश्ता लेट हो जाता है, बच्चों को लेट हो जाती है। हमें सुई गैस की सहूलत दी जाए। इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, हमारे पास सुई गैस नहीं है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें सुई गैस की सहूलत फराहम की जाए। बहावल नगर के शहरी एक तरफ तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने वाली महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानब कुदरती गैस जैसी सहूलत मैसर न होने के बायस अजियत में मुब्तला हैं। 300 से 400 रुपया भाईजान दादी कमाते हैं, इसमें घर के अखराजात भी नहीं पूरे होते और गैस और लकड़ियाँ किधर से जलाएं। गरीब आदमी है, हमारी ये मुतालबा है कि गैस इधर साथ ही है, हमारे रेलवे लाइन के पास ही, हमें गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होने जा रही है। जरूरत इस अमर की है कि अवामी नुमाइंदों की जानब से किए गए बेबुनियाद वादों की बजाय अमली इकदाम किए जाएं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कौकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। कमीर शरीफ में खाद का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रियाज। हुकूमत किसानों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी तहसील साहिवाल और कमीर शरीफ में यूरिया खाद नायाब हो गई। हुकूमत की जानब से यूरिया खाद की सरकारी रेट 300 रुपए इजाफे के बाद 2450 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट में किसानों को यूरिया खाद 3000 में भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस किसान शदीद परेशानी में मुब्तला है। किसानों का कहना है कि गंदम की फसल इस वक्त बढ़ोतरी के अमल में है। यूरिया खाद की अशद जरूरत है, मगर यूरिया खाद नहीं मिल रही, जिसके बायस गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा है। किसानों ने मुतालबा किया है कि यूरिया खाद की फराहमी को आसानी के साथ यकीनी बनाया जाए ताकि बर वक्त फसल को खाद डालकर बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। कैमरामैन मोहम्मद रियाज के साथ मोहम्मद अफसन सियाल, सच न्यूज़, कमीर शरीफ। गुजरात के नवाई इलाके मंगोवाल गरबी की सड़कों पर जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। रिपोर्ट करेंगे वाजिद भट्ट। गुजरात के इलाका मंगोवाल गरबी में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। इंतजामिया की लापरवाही और गफलत की वजह से नालियों और नालों की सफाई न होने की वजह से गलियां नदियों का मंजर पेश करने लगी और जगह जगह पर कूड़े के ढेर, जिनकी वजह से ताफन, बदबू, नज़ला, जुकाम, बहार और डेंगू जैसी लाख बीमारियां जन्म लेने लगी, जिससे शहरी बीमार होने लगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अस्पताल मंगोवाल गरबी के साथ कई सालों से लगे कूड़े के ढेर, जिनको आज तक उठाया न गया। मंगोवाल में जहाँ पे भी रिहायशी इलाके हैं, सब जगह पे जो है वो कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो हैं वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो हमारी गुजरात डिप्टी कमिश्नर से ये दरख्वास्त है कि इस हवाले से जल्द से जल्द जो है वो कोई कार्रवाई की जाए ताकि लोगों को जो है वो परेशानी का सामना ना करना पड़े। कचरा सारा जनाब रोडां उत्ते, गलियां वाणियां, मेन रोडां उत्ते जनाब कचरा पे है। शहरियों ने कहा मंगोवाल गरबी में म्यूनसिपल कमेटी का दफ्तर सिर्फ दिखावे की हद तक रह गया, जिसकी वजह से पूरा शहर इस वक्त कूड़े क्रिकेट के ढेरों से भर गया और नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर गुजरात से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा
मुतालबा कर दिया जल्द पूरे इलाके की सफाई कराई जाए ताकि हम लाहक बीमारियों से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ वाजिद अब्बार, सच न्यूज़, गुजरात। म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बाद टंडो अलायार शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। देखिए सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट। टंडो अलायार शहर की मंसूर कॉलोनी में बगैर बारिश के इलाका समंदर का मंजर पेश करने लगा। म्यूनिसिपल कमेटी टंडो अलायार का अमला गायब, इलाका मकीन परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों ने गंदे पानी की निकासी ना होने के खिलाफ फट पड़े। शहरियों ने सच न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। 8 महीने से हमारे मोहल्ले में गंदा नाले का पानी जमा है, आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया शहर को साफ रखने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम ना कर सकी। ये गंदगी फैल रही है तो मच्छर भी होंगे, तो म्यूनसिपालिटी से हमारी यही इल्तिजा है कि इस पे इसका नोटिस लें और इस गली को सीधा कर दें तो ज़्यादा मुनासिब होगा हमारे लिए भी। आप देख लें कि क्या हालत है गली की, आप खुद देख लें। म्यूनसिपल इंतज़ामिया और डीसी टंडो अलायार इसका नोटिस लें, बराए मेहरबानी, बहुत परेशान है। मजीद शहरियों का कहना था कि जगह जगह सीवरेज के गंदे पानी और कचरे के ढेरों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की पोल खोल दी है, जिस पे शहरियों ने जिला इंतजामिया और डीसी टंडो अलायार से मुतालबा किया कि शहर में जल्द से जल्द सीवरेज और सफाई का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन हम्मास अब्बासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडो अलायार। उज शरीफ के मोहल्ला गिलानी का सीवरेज सिस्टम फेल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हाजी मोहम्मद ताहिर। और शरीफ मोहल्ला गिलानी का सेवरेज सिस्टम नकारा हो गया। सेवरेज सिस्टम नकारा होने से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेवरेज के गंदे पानी से रहाशगीर समेत राहगीर दोहरी अजियत में मुब्तला होने लगे। नमाजी हजरात का मसाजिद में जाना भी दुश्वार हो गया। मर्द, खवातीन और स्कूल में जाने वाले तुलबा व तालिबात समेत दुकानदारों को गुजरना भी मुश्किल हो गया। गटरों की सफाई ना करने पर गटरों का गंदा पानी गटरों से बहर उबलने लगा। शहरियों और दुकानदारों ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि मोहल्ला गिलानी में सेवरेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए ताकि शहरियों को आमदरफ्त में आसानी हो। कैमरामैन अब्बास रजा के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साचे न्यूज़ और शरीफ। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। देखिए इरफान फराज की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन शहर और गिरदोनवा के मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी है, जिसके बायस पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई और जो पेट्रोल पंप्स खुले इन पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। पेट्रोल न मिलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। पेट्रोल के असूल के लिए शहरी पंप्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा है। रकम अदा करने के बावजूद इन्हें पेट्रोल नहीं मिल रहा। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 8000 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, जो चंद घंटों में खत्म हो जाता है। दूसरी जानब इंतजामिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया और वो लंबी तान कर सो गए हैं। पहले आटा नायाब, अब पेट्रोल नायाब, सड़कें वीरान। लोगों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की तरसील को बहाल किया जाए ताकि लोग अपने मामूलात जिंदगी को आसानी चला सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैज, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। हुजरा शाह मुकीम में आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। रिपोर्ट करेंगे मियां एहसान इलाही। दूसरे शहरों की तरह हुजरा शाह मुकीम में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। अवाम आटे के हसूल की खातिर मारे मारे फिरने लगे। तकरीबन 1.25 लाख अफराद की आबादी के मुहीत इस कस्बाती शहर हुजरा शाह मुकीम में सरकार की जानब से चंद सैकड़े 10 किलो आटे के थैले मुहैया किया जाना ना होने के बराबर है। सुबह से शाम तक लाइनों में लगे इन लोगों को खाली हाथ लौटना मजबूरी बन जाता है। आटा नहीं मिलता पिया, की कीता जावे, एडी लंबी लाइन है जी, दलील होए खड़े आ, समझ नहीं आती भी की होना ते की नहीं। आज बाल भुखे ही समझ गए जी। 20 मिनट 3 घंटे वेखन लग पे थोड़ा देना किन्नू है, जेड़ा लाइन तो बगैर आंदा ओनू थोड़ा देता, बाकी इत्थे खड़े ने। अक्सर फाका कशी करने वाले आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालिबा किया है कि आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि 2 वक्त की रोटी मुयस्सर आ सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियां एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। टोबा टेक्सिंग में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। शहर में चिकन समेत शाय खुर्दोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। आटा, घी, दालें, नमक, मिर्च समेत हर चीज महंगी हो गई है। चिकन की कीमतों में इजाफे के बाद बेकरी आइटम्स भी महंगी हो गई हैं। शहर में चिकन से तैयार होने वाली शाह की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी है, घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया है। चिकन का रेट जो है 500 रुपये से 550 रुपये किलो तक बिक रहा है और ये जो कि इनकी मन मर्जी कर रहे हैं। हालांकि चिकन की जो लिस्ट आई है वो 500 रुपये है। मुल्क में अफरा तफरी, अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और महंगाई ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए ताकि आम आदमी की परेशानी कम हो सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग।
यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई का तूफान सब बहा ले गया। फारूकाबाद में अशियाए खुरनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। सैयद सखी हसन की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम को ग़ज़ाई बहरान ने भी घेर लिया। पेट्रोल बिजली की शुतर बेमुहार बढ़ती कीमतों से अवाम उठ नहीं पाए थे कि सब्जियों और दालों की कीमतों ने मजीद चकरा कर रख दिया। महंगाई कम करने के दावेदारों के दावे हवा हो गए। अवाम का कहना है कि एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती कि दूसरे वक्त के खाने के लाले पड़ जाते हैं। महंगाई से गरीब तो गरीब, मुतवस्सित तबका भी पिस कर रह गया। जब सरकारी सतह पर कीमतों में 1% इजाफा होता है तो खुद साख्ता महंगाई करने वाले ताजर हजरात कई गुना इजाफा करके अवाम को लूटना शुरू कर देते हैं, जिसकी बड़ी वजह प्राइस कंट्रोल कमेटियों का फ़ाल ना होना है। महंगाई जो इस वक्त आसमान को छू रही है जी, जो गरीब आदमी वो पिस रहा है और खुर्दोनोश की जो रेट है वो कंट्रोल में नहीं है। मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि जी इनको कंट्रोल किया जाए। महंगाई ने अवाम नूं सफेदपोश अवाम नूं महंगाई दी चक्की 'च पीस छड़िया ते दुकानदारां ने भी 5-5, 10-10 रुपये चीज़ों के रेट वधा छड़े ने, जिसकी वजह नाल सफेदपोश तबका बिल्कुल पिस चुकिया वे महंगाई की चक्की दे विच। आला हुकाम को गुजारिश कर रहे हैं कि नोटिस लिया जाए। अवाम शिकवा करते नजर आते हैं कि हुकूमत वक्त अशियाए खुर्दोनोश की बढ़ती कीमतों को रोकने में नाकाम नजर आती है। सैयद सखी हसन, सच न्यूज़, फारूकाबाद। डॉलर ने ऊंची उड़ान क्या बढ़ी। जहलम में घरेलू इस्तेमाल की इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी महंगी हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर हुसैन। डॉलर के रेट में इजाफे की वजह से जहां बहुत सारी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, वहीं पर होम अप्लायंसेस की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से अब फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन और घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स महंगी हो चुकी हैं। कि मामला इस वक्त इस तरह का है कि तकरीबन हर लिहाज से, जिस तरह ये रेफ्रिजरेटर वगैरह है, AC हैं, होम अप्लायंसेस से रिलेटेड जो भी चीज़ है, माइक्रोवेव है, हर चीज़ में तकरीबन इस वक्त 5-5, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये का जंप है। तकरीबन जिस तरह का भी मामला चल रहा है, महंगाई जिस हिसाब से चल रही है, इस बढ़ते महंगाई के दौर में अवाम को बेसिक ये चाहिए कि आवाज़ उठाई जाए। एक हुकूमती पॉलिसी से यही परेशानी आई है कि डॉलर महंगा हो गया, प्राइस वहीं पे खड़ी है। डॉलर जो महंगा है ना, उस लिहाज से हमारी प्राइस जो है ना वो ज़्यादा बढ़ी हुई है। 20-25% तक AC महंगी हो गई है। जो लास्ट ईयर AC 1 लाख रुपए का था, इस वक्त 1,36,000 रुपये का है। 35-36 हज़ार रुपये का इजाफा हो गया है। जो डेटा की AC है, तो परेशानी तो है जी, ना LC ओपन हो रही है, ना कोई स्टॉक आ रहा है, तो मामला तो ख़राब है। कब तक हम स्टॉक बेचते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। कई कंपनियों ने अपने पैदावारी यूनिट बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से होम अप्लायंसेस की काफ़ी आइटम्स मार्केट में नापैद हो गई हैं और जिनके पास माल मौजूद है, उन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान ने होम अप्लायंसेस की कीमतों में बेपनाह इजाफा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजर ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इकदाम करे। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जहलम। रिनाला खुर्द में महंगाई का तूफान थम न सका। देखिए राना नवाज की रिपोर्ट। रिनाला खुर्द में महंगाई का तूफान न थम सका। अशियाए खुर्दोनोश के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का सामान, ईंट, सरिया, सीमेंट महंगी होने से मजदूर तबका शदीद परेशान दिखाई दे रहा है। ताज़ा दिहाड़ीदार मजदूर का इस दौर में बच्चों का पेट पालना इंतहाई मुश्किल हो गया। इस टाइम खान पीन वालियां शावां भी बहुत महंगियां ने ते उहदे नाल बिल्डिंग लैन दा भी सारा समान, रेत, बजरी, सीमेंट बहुत महंगी हो गई है। उनकी वजह परेशान ने, एक टाइम की रोटी नहीं पका सकते ते हुकूमत नूं चाहिए उनके बारे जल्दी तो जल्दी कोई नोटिस लवे। मजदूर और तबका ने वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। पाराचनार में शदीद सर्दी की लहर जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। पाराचनार में इन दिनों शदीद सर्दी की लहर जारी है। टेम्परेचर रात को -11 का हिंसा क्रॉस कर जाता है, जबकि दिन को भी सर्दी होती है। ऐसे में घरों को गर्म रखने का वाहिद जरिया खुश्क लकड़ी है, मगर पहले से महंगाई की सताए अवाम खुश्क लकड़ी की कीमतों में इजाफे की वजह से मजीद परेशानी में मुब्तला है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से हम लोग लकड़ियाँ वगैरह नहीं खरीद सकते, क्योंकि वो खुश्क लकड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। इसमें महंगाई के दौर में गरीब आदमी के कैसे गुजारा करें। लकड़ी की कीमत भी 1200 रुपए तक पहुंच गया है। खुश्क लकड़ी की कीमतें 1200-1300 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी। आम शहरी और मजदूर इस परेशानी में मुब्तला है कि अब बच्चों के लिए आटा और घी खरीदी या लकड़ी खरीदी। जावेद बंगश, सच न्यूज़, पाराचनार, जिले कुरुम। जिला कोटदू की तारीख में पहली बार खातून सब इंस्पेक्टर सईदा खालिक को SHO महमूद कोट तैनात कर दिया गया। मुनीर हुसैन की रिपोर्ट। जिला कोटदू की तारीख में पहली बार खातून SHO को तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर सईदा खालिक को थाना महमूद कोट में तैनात किया गया।
थाना महमूद कोट के मकीनों ने खातून SHO की तैनाती पर खैर मकदम किया और सराहा। मैडम सईदा खालिक का कहना था कि खवातीन को भी वही ट्रेनिंग दी जाती है जो मर्द पुलिस अफसरान को दी जाती है। मेरे ऑफिस के दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। मेरा नाम सईदा खालिक है और डिस्ट्रिक्ट कोटादू में मैं बतौर फर्स्ट लेडी SHO तैनात हुई हूँ और ये मेरी फर्स्ट SHO शिप है। तो यहाँ पे मैं लोगों से और आवाम से और ख़ासतौर पर औरतों से ये कहना चाहूँगी कि आवाम से ये कहना चाहूँगी कि 24/7 मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं। वो आके मुझे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपने मसाइल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। थाना महमूद कोट में तैनात होने वाली खातून SHO को मिलने के लिए स्कूल के बच्चे बच्चियां जोक दर जोक आ रहे हैं। मैं महमूद कोट शहर में रहती हूँ। हमें पता चला था कि हमारे पुलिस थाने में एक SHO आई हैं, हम उनसे मिलने आए थे। वो बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमें बच्चों की प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सी मालूमात दी हैं। उन्होंने हमें बहुत सी बातें भी बताई हैं, हम उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। खातून SHO ने महमूद कोट शहर का विजिट किया, सराफा बाजार का भी विजिट किया। सराफा बाजार में सिक्योरिटी गार्ड और CCTV कैमरे भी चेक किए। रोड पर तजावजात और अंदरूनी शहर तजावजात वालों को वार्निंग दी। थाना महमूद कोट में तैनात खातून SHO ने जराइम पर काबू पाने के लिए और मर्द अफसरान के साथ शाना बशाना काम करने के लिए पुरअज़म हैं। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। स्वीडन और नीदरलैंड में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ कमालिया की सिविल सोसाइटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। असद राजपूत की रिपोर्ट। कमालिया कलमा चौक में स्वीडन और नीदरलैंड की जानिब से कुरान करीम के बेहुरमती के खिलाफ सिविल सोसाइटी के मेंबरान और वकला कम्यूनिटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने गुस्ताख ममालिक के खिलाफ खूब नारेबाजी की। मुशरका का कहना था कि इस तरह की घटिया हरकत करके इन ममालिक ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की इज्जत और गैरत को ललकारा है। हम कुरान करीम की शान और नबी की आन पर जान भी कुर्बान कर सकते हैं। इस्लाम से दूरी और इस्लाम के दिफा के लिए ना उठना, यही हमारे मुल्क का, हमारे मुसलमानों का जुर्म है, जिस वजह से हम मुआशी तौर पर भी जो है वो डिफ़ाल्टर हो चुके हैं। बेहतरीन अमन की किताब कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए अमन को खुद ही तार तार करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए और हम सब को कुरान के दिफा के लिए खड़ा होना चाहिए। मौका पर शुरका का कहना था कि इस गुस्ताखी से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। कुरान करीम मुसलमानों की ज़िंदगी का अमली नमूना है और हम इस तरह की गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत वक्त इस सूरत हाल पर नोटिस लेते हुए इन ममालिक से सफारती तल्लुकात को ख़त्म करे। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ दीना में रैली निकाली गई। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती करने के खिलाफ दीना में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में दीना के शहरी बुजुर्ग खवातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। इन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर स्वीडन मुखालिफ नारे दर्ज थे। कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए स्वीडन हुकूमत पर गम और गुस्से का इजहार किया। As you know, we all gather here in the form of really good to condemn the act of Sweden's government, what they have done with Quran. उन्होंने कुरान की जिस तरह से बेहुरमती की है और जिस तरह से उन्होंने नुस्खे जलाए हैं, हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं जो यूरोप के अंदर स्वीडन और हॉलैंड में कुरान पाक की गुस्ताखी की गई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नाज़ेबा हरकत है। ज़िंदा कौमें, बाशऊर कौमें इस तरह की हरकतें नहीं करती। मैं तो कहता हूँ कि वो पूरे दुनिया को कहते हैं कि हम लोग बड़े अमन पसंद लोग हैं। आएँ, अगर अमन सीखना है तो इस्लाम को पढ़ें, अमन सीखना है तो जिस किताब को आपने जलाने की ये नाज़ेबा हरकत की है उस कुरान को अल्लाह आपको मौका दे, आप तर्जुमे के साथ पढ़ लें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। रैली में शरीक शुरका ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है इस वाक़े को रस्मी मजम्मत की बजाय आलमी फोरम पर भरपूर अंदाज में उठाया जाए और वाक़े में मुलव्वस अनासर को करार वाक़े सजा दिलाई जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ फोर्ट अब्बास में एहतजाजी रैली निकाली गई। ज़ोरा अहमद वास्ती की रिपोर्ट। फोर्ट अब्बास में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए और शदीद एहतजाज किया गया और नारेबाजी भी की गई। कुरान ने हमें किसी दूसरे के घर में जाने का तरीका बताया है। कुरान ने हमें बताया है सीधा रास्ता जो मदीने को जाने वाला है वो कौन सा है, कुरान ने बताया है। हम कुरान के बेअदब को कैसे माफ करें, हम कुरान के गुस्ताख को कैसे माफ करें।
चले। इस मौका पर तमाम मकातिब के उलमा कराम की जानिब से एक रैली भी निकाली गई। रैली की क़यादत कारी मोहम्मद इसाक साहब और मौलाना यार मोहम्मद ने की। रैली में शहरियों, सहाफ़ियों, वकला हज़रात, अंजुमन आड़तियान ने भी शिरकत की। रैली शुरका में खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद की बेहुरमती किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वीडन की तमाम मसनूआत का बाइकाट किया जाए। हुकूमत वक्त फौरी इस पर नोटिस ले। कुरान की ताकत बकाया है। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि स्वीडन से तमाम सफारती तिजारती तल्लुकात को खत्म किया जाए। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के हमरा सैयद जुरेज वास्ती, सच न्यूज़, फोर्ट अब्बास। नारंग मंडी में तलबा ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रिपोर्ट कर रहे हैं मुअज्जम नवाज। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ निजी स्कूल के तलबा ने एहतजाजी रैली निकाली, जिसका आगाज हैदरी चौक नारंग मंडी से हुआ, जो रेल बाजार, रेलवे रोड, थाना रोड से होती हुई रफीकाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तलबा ने बिस्मिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारे लगाए। आज जो स्वीडन के कफ़ार ने कुरान की बेहुरमती की है, उसकी मजम्मत के लिए हमने आज एक जुलूस निकाला है। हम कुरान की हिफाजत के लिए अपनी जानें भी कुर्बान कर सकते हैं। स्वीडन के कुफार ने जो कुरान की बेहुरमती की है, आज हम उसकी मजम्मत के लिए हमने ये मार्च निकाला है। कुफार ने जो कुरान की बेहुरमती उसको जला के करने की कोशिश की है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह हमारा ये हिफाज़त कराम का ये दस्ता उनको ये बताना चाहता है कि तुम कुरान को जला सकते हो लेकिन हमारे सीनों से नहीं निकाल सकते। कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद उठाया है, कोई भी इसकी शान और मुकाम को कम नहीं कर सकता। हम कुरान मजीद की हिफाजत के लिए अपनी जानें देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की तौहीन के खिलाफ हारूनाबाद में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रिपोर्ट करेंगे अरशद गली गौरी। कुरान मजीद की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ मरकजी मुस्लिम लीग हारूनाबाद के ओहदेदारान व कार कुरान की तरफ से छोटे अड्डे से एहतजाजी रैली निकाली गई, जो मेन फौरा चौक पहुँचने पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में PTI के रहनुमा मियां अब्दुल वास में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत सदर मरकजी मुस्लिम लीग हारूनाबाद मलक फैसल ने की। एहतजाजी रैली में शरीक शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर स्वीडन के खिलाफ मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर एहतजाजी रैली में शरीक शुरका का कहना था कि ज़हारे ख्याल की आज़ादी की आड़ में हम अपनी मुकद्दस किताब कुरान पाक की बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसका भरपूर एहतजाज करते हैं और अक़वाम बाला से ये मुतालबा करते हैं कि ये गवर्नमेंट की सतह पर उनका मुंह जोर जवाब देना चाहिए। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि मुस्लिम दुनिया इस घिनौने फाल के खिलाफ मुतहद होकर मुस्लिम कशकुवतों के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करते हुए स्वीडन के साथ हर तरह के तल्लुकात मुंतका कर दें। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। लिया में जिमखाना क्लब का संगे बुनियाद रख दिया गया। सहूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया में मुल्क के सबसे बड़े जिमखाना क्लब का संगे बुनियाद रख दिया गया, जो कि 310 कनाल पर मुहित होगा। संगे बुनियाद की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, DPO, अफसरान समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद शरीक हुई। जिमखाना में ज़हनी और जिस्मानी सेहतमंद सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम लवाजमात मुयस्सर होंगे। जिमखाना को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत अप्रोच किया जाएगा। फोकल पर्सन है कुछ अनाज साहबा, जो हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हैं। फार्म इनके पास मौजूद हैं, तो इसका ये होगा कि जो भी फीस होगी वो बैंक में जमा होगी, अकाउंट में, वो रसीद ला के इनको देंगे, तो ये फिर मेंबरशिप फॉर्म फिल कर दे देंगी, वो फिल करके वापस हो जाएगा और मेंबरशिप कार्ड जो है वो इशू हो जाएगा। तो जो मेंबर फैमिली का एक सरबराह उसको मेंबरशिप देगी, बाकी तमाम जो है उसको कम्प्लीमेंट्री होगी। वो हर एक के लिए लहदा से नहीं होगी। अगर किसी के 4 बच्चे हैं और एक बीवी है तो वो 4 बच्चे और बीवी फ्री होगा। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, आम आदमी आटे के असूल के लिए मारा फिर रहा है, तो दूसरी जानिब महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी। इलट क्लास के लिए करोड़ों रुपयों को लागत से तामीर होने वाला जिमखाना क्लब हुकूमत और गरीब आदमी के दरमियान वाज़ेह फासलों की दलील है। याद रहे, जिमखाना क्लब की मेंबरशिप फीस 1 लाख रुपए मुख्तस की गई है। बन्नू में पहली बार स्पोर्ट्स खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे सलमान खान। जहां बन्नू के नौजवानों ने स्पोर्ट्स के मैदान में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा किए हैं, तो वहां अदम सहूलियात के बायस नौजवानों और स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को शदीद मुश्किलात दरपेश है। बड़ी खुशाइन बात है कि इस खुली कचहरी में हमारे स्पेशल पर्सन को भी शामिल किया गया है। जो मुतलबात किए DC साहब ने वो मान भी लिए और इंशाल्लाह यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वो पूरे किए जाएंगे। इन खिलाड़ियों की मुश्किलात के हल के लिए ज़िली इंतज़ामिया ने पहली बार कुली कचहरी का इनेकाद किया, जिससे खिलाड़ियों ने उम्मीद जाहिर की कि कुली कचहरी से हमारे स्पोर्ट्स को दरपेश मसाइल के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हमारे बन्नू की तारीख में पहली मरतबा किसी डिप्टी कमिश्नर ने प्लेयर्स के लिए कुली कचहरी लगाई, तो यहाँ पर तकरीबन बन्नू के तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स की एसोसिएशंस
उनके अहदेदार हैं, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की और डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने अपने मसाइल पेश किए। कुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि मजदूर अफराद समेत खवातीन खिलाड़ियों, बच्चों और नौजवान खिलाड़ियों के लिए खसूसी खेलों को फ़रोग़ मिलेगा। बन्नू के नौजवानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि खेलों की सरगर्मियाँ बढ़ा दी जाए, चूँकि जहाँ खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। गर्मा गर्म भुने चने मुल्क भर में मशहूर। लोग दूर दराज से सादिकाबाद के इलाके सज्जरपुर में स्पेशल भुने हुए चने खाने के लिए आते हैं। रिपोर्ट करेंगे हमादुल्ला। सादिकाबाद के इलाके संजरपुर में स्पेशल भुने हुए चने तैयार किए जाते हैं। चने तैयार करने वाले कारीगर का कहना था कि हम 45 साल से भुने हुए चने तैयार कर रहे हैं। चने को तैयार करने के लिए सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जाती है, फिर चने में नमक डालकर अच्छे तरीके से मिलाया जाता है, फिर चने को भट्टी में लगी कढ़ाई के अंदर डाला जाता है और चनों को रगड़ा जाता है, फिर उसको छाना लगाया जाता है और फिर जाकर चने तैयार होते हैं। इस मौके पर चना तैयार करने वाले कारीगर का कहना था कि हमारे चने पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। लोग दूर दराज इलाकों से हमारे चने खाने आते हैं। हम चने लेके आते हैं, अपना सफाई करते हैं, इसको छाना लगाते हैं, कचरा बाहर सारा निकालते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, फिर इसको बुनाई करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। उसके बाद दूर दूर से आदमी आते हैं, बड़े शौक से ये लेके जाते हैं। भुने हुए स्पेशल चने जहां सेहत के लिए मुफीद हैं तो वहीं पर पहलवानों के लिए भी फायदेमंद हैं। स्पेशल भुने हुए चने छोटे बड़े शौक से खाते हैं और घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए भी लेकर जाते हैं। लज्जत और जायके से भरपूर गर्मा गर्म चने खाने के लिए शहरी सादिकाबाद में चने वाली दुकान का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी, सादिकाबाद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। डेहरकी में गर्म और चटपटे पकवानों की मांग बढ़ गई। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गर्मा गर्म ताज़ा समोसे और पकोड़ों की खुशबूदार महक हर देखने वालों को अपनी तरफ मतवज्जा करने लगी। सर्द मौसम होते ही समोसों और पकोड़ों की मांग में इजाफा हो गया। डेहरकी में बड़ी तादाद में लोगों की पकोड़ों और समोसों की दुकानों पर रश, गर्मा गर्म पकोड़े और ताज़ा समोसे खाने लगे। सर्दी में इजाफा हो गया है, हम घर से निकल आए हैं एंजॉयमेंट करने के लिए। ये मिठाई की दुकान है, ज़बरदस्त पॉइंट है जहाँ पे पकोड़े समोसे खाने के लिए हम आए हैं और बेहतरीन है, माशाल्लाह से एंजॉय कर रहे हैं। सर्दी में हम पकोड़े समोसे खा रहे हैं। सर्दी में इजाफा हो गया है और पकोड़ों और समोसों का हम मज़ा ले रहे हैं। आए हैं उबाड़ों से डेहरकी शहर में और शिद्दत हो गई है सर्दी में ज़्यादा और लुत्फ़अंदाज हो रहे हैं। तो वो लोग हमारे पास आ रहे हैं दूर दराज से समोसे पकोड़े लेने के लिए और पार्सल लेके जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास बैठ के वो खाते भी हैं। सख्त सर्दी में लोग गर्मा गर्म और चटकारेदार चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होने लगे, जिसमें गर्मा गर्म समोसे और पकोड़ों की मांग में भी इजाफा होने लगा। कैमरामैन मोहम्मद मुजबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेहरकी। लोअरदीर के अलखिदमत अस्पताल जवाल बाबा में पैदाइशी तौर पर कटे तालू और होंठ वाले मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लाह सबाती की रिपोर्ट। अलखिदमत अस्पताल जवाल बाबा में पैदाइश तौर पर कटे होंठ और तालू सुराख वाले मरीजों के लिए प्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लाहौर से आई हुई प्लास्टिक सर्जरी सर्जन डॉक्टर फैसल रशीद और इस्माइल ने मरीजों का मुआयना किया। प्री मेडिकल कैंप में 105 मरीजों का मुआयना किया गया, जबकि 15 मरीजों को मुफ्त ऑपरेशन करने का फैसला किया गया। जो कैंप है ऐसे बच्चों का है जो पैदाइशी कटे होंठ और कटे तालु के मर्ज के साथ पैदा होते हैं। इनका इलाज बिल्कुल फ्री और मुफ्त है और माहिर डॉक्टर की ज़ेर निगरानी ये किया जाता है। ये इसमें उन बच्चों का इलाज होगा जो पैदाइशी तौर पर उनके होंठ कटे हुए हों और तालु में सुराख हों। उनका यह स्क्रीन आउट होगा, उनको डायग्नोस किया जाएगा। इस मौका पर प्लास्टिक सर्जरी सर्जन डॉक्टर फैसल रशीद ने बताया कि इन 15 मरीजों का अनकरीब मुफ्त ऑपरेशन के साथ मुफ्त रिहाइश और दीगर सहूलत दी जाएगी। इनका कहना था कि मुस्तक़बिल में ज़िला लोअरदीर में मज़ीद अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से मज़ीद प्री मेडिकल कैंप्स भी मुनक़िद किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअरदीर। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।